evening, everybody. I hope everybody has joined now. My name is Prashant Kotian. I'll be taking care of your chemistry part. So today we are starting with very basic, topic called as ABC of chemistry, meaning basics of chemistry. So we are going to use them in different parts of chemistry, in different topics of chemistry. जो भी बच्चों को जो बेसिक पता रहना चाहिए उसको हमने क्लब करके बेसिक्स जो स्कूल में भी आपका होता होगा सो उसको हम लोग क्या करेंगे वो चीजें बच्चों को पता रहना चाहिए so that's why we just keep it as ABC of chemistry. Here there are many things that we are going to study. So you guys just tell me my voice is audible or not. If my voice is audible, then we can go ahead now. So give main heading ABC of chemistry. ABC of chemistry. First, you guys must know how to represent an element. How to represent an element. You must know this. We know write X as a symbol for element, and here we write Z for atomic number, and A stands for mass number, where Z stands for atomic number, and A stands for mass number. Now, what does that mean? Atomic number means number of protons. You guys have to make notes. Okay, notes बनाना है आप लोगों को. मैं जैसे लिखते जाऊँगा साइड बाय साइड आप भी लिखते जाओ मैं स्लो जाऊँगा. So number of protons. Okay, कितना protons है? That can be easily understood by knowing the value of Z. And number of electrons can also be understood from the value of Z. Z से ये मालूम पड़ेगा. But if you want to calculate number of neutrons कितने हैं? If I want to calculate, then I can simply subtract A minus Z, because mass number nothing but total number of protons and neutrons. Okay, total number of protons और neutrons को ऐड करके हम लोग mass number बताते हैं. वैसे देखा जाए तो electrons का mass को भी ऐड करना चाहिए, but later on you will understand कि protons और electrons का mass आप देखोगे तो electron का mass negligible. You will see that part. So इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? Z की जगह I can replace that with protons, and mass की जगह I can simply keep P and N, P plus N. Now क्यों mass number हम लोग सिर्फ P plus N लेते हैं वो वाला पार्ट देखते हैं. Fundamental particles like proton, electron, neutron, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए about its mass, about their mass and charge. If I say, let us say for proton is represented like this, where +1 stands for, or the lower one is stands for unit charge. ये उसका unit charge बताता है. And the upper one stands for unit mass. अब ये यूनिट चार्ज और यूनिट मास का मतलब क्या है? समझो कि पेन मेरे पास है और पेन से छोटा कुछ चीज है ही नहीं समझते. Then what I will do, I will consider all the properties like mass, charge. These are the properties of something. So I'll consider as 1. Why? Because पेन से छोटा कुछ है ही नहीं तो पेन का properties को 1 समझना as a reference. This is randomly done. उसका actual mass कुछ और हो सकता है. But as a randomly उसका mass हम 1 समझूंगा. Where it can be used, कोई किसी और का mass use करने के लिए आप कर सकते हो. Okay, किसी और का mass calculate करने के लिए कर सकते हो. For example, मुझे कोई और चीज का mass calculate करना हो, तो वो object को यहाँ पे रखूंगा. I'll keep on adding this pen. Then at one time what happens, they will get balanced. Then I can say its mass as, let us say, 20 pence. So 20 pence is not the right way to measure, but arbitrarily if you take 1 pen as 1 unit,
I can say that its mass is 20 times. This is how people used to measure things, okay, by keeping something as reference. So प्रोटॉन का भी वैसे ही है, प्रोटॉन का मास इतना कम है और वो एकदम फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है, तो उसका मास को भी क्या समझा गया था, 1 समझा गया था. So I can say unit mass is 1 unit. 1 unit समझा गया था. Where we going to use this? We are going to use this to measure atomic mass. Atomic mass measure करने के लिए हम लोग use करते हैं atomic mass use करने के लिए use करेंगे, तो इसलिए it is called as atomic mass unit. Okay. एक सेकंड रुको बेटा, मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ. यूनिट मास मतलब आर्बिट्ररी लिया गया था, बट जब एक्चुअली ढूंढा गया, so later on actual mass was calculated for proton by using something called as mass spectrometer. mass spectrometer करके एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप क्या कर सकते हो, छोटे से छोटा पार्टिकल का भी मास आप ढूंढ पाओगे. so that is recently, very recently, like 1950 के आसपास, 1950 के आसपास वो ढूंढा गया था, तो मास ऑफ एक्चुअल प्रोटॉन वाज फाउंड आउट. how much it was, 1.673 into 10 raised to minus 24 grams. Okay, 1 into 10 raised to 1.673 into 10 raised to minus 24 grams था, बहुत ही कम है. आप ये 10 raised to minus 24 को समझ सकते हो, 0.0000 आपको 23 जीरो डालना पड़ेगा, then it will come. So very less mass, but this is the perfect actual mass. And आपको पता है मास को तो हम लोग मेजर करेंगे ग्राम नहीं, ग्राम is the right way of measuring mass. This unit is the arbitrary one taken as a standard or a reference. We can use for atomic mass, but whenever you want the actual mass, then we go for the actual mass of proton. Similarly, this particular +1 unit is the actually unit charge. ये unit charge है, तो ये यूनिट चार्ज है. ओके, देखो मैंने 4 बजे के बाद शुरू किया बेटा, तुम लोग जल्दी ज्वाइन हो जाओ. मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैं रिपीट करता हूँ, लेट ज्वाइन नहीं करना है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करना है. What I was saying about how to represent an element. एक एलिमेंट को कैसे represent करेंगे, that's all. So एक एलिमेंट को हम लोग सिंबल x करके लिख सकते हैं, एक सिंबल x करके लिखेंगे. So down we write it as Z stands for atomic number, and up we write A stands for mass number. Okay, mass number के लिए ऐसे लिखेंगे. Now what Z stands for atomic number, we can get the number of protons by knowing the value of atomic number, that is simply Z. And even by knowing the atomic number, we also come to know about number of electrons. Number of electrons भी मालूम पड़ जाएगा. And neutrons का number समझने के लिए what you have to do, you have to simply subtract A minus Z, यानी कि mass number minus atomic number आपको करना पड़ेगा. Then that will help you. So actually mass number में हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करना चाहिए था, तो वो ऐड इसलिए पूरा नहीं करते बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत ही कम है, वही हम लोग पार्ट यहाँ पे देख रहे थे. सो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास को इग्नोर करेंगे. सिंपली वी टेक मास नंबर एज p plus n, so that p plus n is written here. This is congruent, मतलब you can write like this or like this, both are okay, दोनों चलेगा वैसे. So I was talking about the mass and charge of proton, electron, neutron. इनका मास चार्ज को हम लोग समझते हैं. अभी इधर जब भी मैं एक प्रोटॉन को लिखूंगा तो ऊपर 1 नीचे +1 लिखेंगे. एंड ऊपर वाला क्या है, इट इज कॉल्ड एज यूनिट मास. मतलब प्रोटॉन से छोटा कुछ है ही नहीं, तो प्रोटॉन को मास को क्या समझा गया, 1 यूनिट समझा गया.
एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज बोलेंगे. सो अभी मैंने आपको बता रहा था कि पेन छोटा है, पेन से छोटा कुछ है ही नहीं, तो उसका चार्ज को भी 1 समझूंगा, इसका मास को भी 1 समझूंगा. सिमिलरली यहाँ पे प्रोटॉन बीइंग द स्मॉलेस्ट वन, consider its mass as 1 unit. Where we use that, we use to measure the atomic mass of the element. So that's why this unit is called as atomic mass unit. And the charge is also considered as +1 unit. वो positive in nature में होता है और +1 unit बोला गया. So, but when we measure the actual mass by using very sophisticated instrument like mass spectrometer के through जब proton का mass ढूंढा गया, then we came to know that the mass of a proton is 1.673 into 10 raised to minus 24 ग्राम. ये वैल्यू आपको बाहर करके रखना पड़ेगा. ओके. सिमिलरली यूनिट चार्ज तो आपको पता है +1 यूनिट होगा, +1 unit. But later on even the charge was calculated. Actual charge को भी calculate किया है. I hope this particular thing is visible in the screen. So actual charge was 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, positive 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, where C stands for coulomb. Okay, coulomb is the unit of charge. So charge का unit coulomb है. So आप actual charge निकाल सकते हो as 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay. Now similarly we go for electron. Electron is represented like this. Electron is represented like this, -1 and 0. So again the same thing. जो भी नीचे लिखोगे वो unit charge होगा, ऊपर लिखोगे unit mass. Now here as compared to protons mass, protons का mass के साथ मैं compare करूंगा तो electrons mass is negligible, बहुत ही कम है. But अब और भी देखोगे तो it is like this, 0.000581, very less, very less. But इसका मतलब ये नहीं, जीरो मतलब ये मत समझना कि complete zero है, value है, but it is negligible as compared to protons mass. So that's why we consider 0 AMU with reference to the mass of proton. But actual mass was later calculated and it was come out to be 9.1 into 10 raised to minus 28 gram. So this is the actual mass of electron. So you have to remember this also. इसको भी आपको याद करके रखना. So next, चार्ज वाइज आप देखोगे अगेन 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज यहाँ पर भी है, बट दैट इज नेगेटिव इन नेचर, 1 -1 यूनिट. So value wise the value is same. Okay, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, but sign wise negative. Okay, sign wise it is negative. So आपको पता रहना चाहिए कि magnitude of charge of electron and proton are same. मतलब value wise उनका चार्ज का वैल्यू जो है वो सेम है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, बट ऑपोजिट इन साइन. बट लुक एट द मास. मास देखो आप, वहां पे जमीन आसमान की फर्क है. सो जमीन आसमान की फर्क कैसे मैं बताऊंगा आपको. सो इफ यू टेक द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, mass of proton upon mass of electron. So if I put that value 1.673 into 10 raised to minus 24 divided by 9.1 into 10 raised to minus 28 gram. Okay, both are gram. So ये आप calculate करोगे, you will get the value as 1837. So मतलब क्या है, प्रोटॉन जो है 1800 times greater in terms of mass as compared to electron. मतलब मैं प्रोटॉन को एलिफेंट समझता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन इज लाइक एंट जैसा. एंट और एलिफेंट का डिफरेंस जो है उतना बड़ा डिफरेंस है. सो इसीलिए
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास को यूज नहीं किया गया, बिकॉज आप ऐसे कभी करोगे क्या कि एलिफेंट का वजन दिखना है समझो, और एलिफेंट को आपने स्केल के ऊपर रख दिया और एलिफेंट के ऊपर एक एंट जा रहा है, एंट बैठा हुआ है समझो, तो आप ये करोगे कि एंट को हटाओ वरना तो एलिफेंट का मास में बड़ा फर्क आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हो या ना हो उसका मास के ऊपर असर बहुत ही कम पड़ता है, बिकॉज 1800 टाइम्स ग्रेटर, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। So that's why remember mass of the electron is not considered when एक एलिमेंट का एक एटम का मास ढूंढते वक्त इलेक्ट्रॉन का मास को इग्नोर किया जाएगा। तो बट चार्ज वाइज आप देखोगे इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, मतलब बोथ आर अपोजिट इन नेचर, वैल्यूज विल गेट कैंसिल बिकॉज एक बड़ा चार्ज एक छोटा चार्ज नहीं है, दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या है, सेम, but opposite to each other. Yeah, make opposite sign. Okay. So similarly, if I go for neutron, neutron के लिए मैं जाऊँ तो neutron is represented. Neutron को ऐसे represent करेंगे और mass wise again 1 unit या 1 AMU बोलो उसको, because it is also used to measure the atomic mass. So इसलिए atomic mass बोलेंगे. But when it is actually calculated, then we realize that the mass of proton is slightly heavier than that of proton. Okay, mass of neutron is slightly heavier than that of proton. ये जो थर्ड डेसिमल है, थर्ड डेसिमल, सो उससे मालूम पड़ता है आपको न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर, ओके, थोड़ा सा हेवियर है। बट जब आर्बिट्ररी यूनिट में आप देखोगे, यानी कि एक रेफरेंस यूनिट में आप देखोगे, वहां पे कुछ फर्क नहीं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटा माइन्यूट चेंज है। सो यहाँ पे हम दोनों को 1 यूनिट ही समझेंगे, प्रोटॉन का मास को भी 1 यूनिट समझेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मास को भी 1 यूनिट। पर जब एक्चुअली ढूंढा तो तभी थोड़ा सा न्यूट्रॉन हेवियर था। तो चार्ज वाइज आपको पता ही है कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो नोट कर लो इसको। एक बार नोट करके हो गए तो ओके बोल देना। ओके, सो नाउ लेट अस गो फर्दर। इसमें कोई किसी को डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इन द चैट सेक्शन। So actual mass and actual charge has to be remembered, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। Total mass of the atom can be considered as twice of mass of proton. Yes, you can, but the problem is neutron का number भी change होते रहता है, not necessarily all the time neutron number is same as that of proton. तो आप कभी भी प्रोटॉन का डबल मैक्सिमम टाइम पे होता है, बट न्यूट्रॉन्स is mass of neutron considered negligible. Why ऋतुज? मैंने वहां पे लिखा है ना, न्यूट्रॉन्स मास इज नॉट नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन्स मास इज नेग्लिजिबल। So I'll proceed now.
So let's see where we can use them. Okay. Where we can use them. So write down first 20 elements. You have to remember first 20 elements by heart. So atomic number, element, and mass number. So first atomic number 1 is hydrogen, written symbol as H. Mass number is 1 AMU. Atomic number 2 is helium, 4 AMU. So AMU लिखते जा सकते हो. 3 lithium, 7 4 beryllium, 9 5 boron, 11 6 carbon, 12 7 nitrogen, 14 8 oxygen, 16 9 fluorine, 19 10 neon, 20 11 sodium, 23 12 magnesium, 24 13 aluminium, 27 14 silicon, 15 phosphorus, 31 16 sulfur, 32 So 17, you guys can continue there. 17 chlorine, 35.5 18 argon, 40 19 potassium, 39 20 calcium, 40. So these 20 elements you have to remember throughout this topic. Copy it. All these elements symbol you have to remember along with their mass. Atomic mass भी आपको याद रखना. Now let me just take an example of one element and let us study about that. If I take an example of, let us say, sodium. So 11, 23. Okay. So we know protons 11, electrons 11, and neutrons 23 minus 11, that is 12. Okay. Neutron का number आपको 23 minus 11 करने से मिलेगा. Now, mass of one sodium atom. Mass of one sodium atom. Actually क्या होना चाहिए? जितना प्रोटॉन्स है उनका मास, जितना न्यूट्रॉन्स है उनका मास, एंड जितना इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास होना चाहिए.
और मैंने आपको बता दिया वी इग्नोर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स मास इज नेग्लिजिबल, वी ओनली कंसीडर मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आर्बिट्ररी यूनिट में एक प्रोटॉन का मास को 1 AMU बोला है। सो देयर आर 11 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स मतलब 11 AMU होगा। देयर आर 12 न्यूट्रॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स मतलब 12 AMU होगा, and this becomes 23 AMU. So this is what we have written here. So mass of protons and neutrons collectively 23 AMU. Now, if you look at the earlier table, यहाँ पे जो टेबल था उससे आपको मालूम पड़ेगा मैंने प्रोटॉन का मास को 1 AMU बोला और यहाँ पे लिखा था 1.673 × 10⁻24 ग्राम। So this can be used as a conversion factor. So conversion factor के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं to convert from AMU to gram. So remember this, 1 AMU equal to 1.67 into 10⁻⁻24 gram. So this will be used to, okay, this will be used to calculate the, convert AMU into gram. Now you may wonder why I have ignored the third decimal. I have ignored third decimal because third decimal is uncommon in the case of neutron and proton. आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन के केस में वो 3 है और प्रोटॉन के केस में वो 5 है, बट दोनों को हम लोग 1 AMU ही बोलते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन I ignored the third decimal and thereby I kept 1 AMU equal to 1.67 into 10⁻⁻24. So ये conversion करना है। Now I have atomic mass of sodium as 23 AMU. 23 AMU करके सोडियम का मेरे पास atomic mass है, तो उसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। Then what I can do, I know the fact that 1 AMU equal to 1.67 into 10⁻⁻24. So 23 AMU will be how many grams? So 23 AMU यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो you will realize 23 into 1.67 into 10⁻⁻24 grams. तो ये आ जाएगा। अभी आप पूछोगे what is the difference? There is no difference except the unit. Unit के अलावा कोई difference नहीं है। Both are telling us atomic mass. दोनों हमें atomic mass ही बताता है, but दो अलग-अलग unit में। Now atomic mass क्या होता है? Mass of one atom. अब in this case we are taking sodium. Otherwise mass of one atom is taken as atomic mass. Now बच्चों, can you tell me, if I want to measure the mass of 2 sodium atoms, what should I do? क्या करना चाहिए और कौन सा स्टेप में क्या करना चाहिए बताओ। तो अभी 2 एटम्स का मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा 60,000। देखो, जो बच्चों को आंसर करना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन से, एंड आंसर बोलने के बाद यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके, So 46 into 1.67 into 10⁻⁻24 grams. एग्जैक्टली बराबर है। सो 10 एटम्स के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, 100 एटम्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो ये भूलना नहीं। नाउ रिमेंबर, व्हेन आई चेंज द एलिमेंट, मैं एलिमेंट चेंज करता हूँ समझो, तभी जाके ये कन्वर्जन फैक्टर चेंज नहीं होगा, ये एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट करने वाला चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अभी सोडियम की जगह पोटेशियम लिया होता, ओके, सोडियम की जगह पोटेशियम लिया होता, सो दिस इज 39, ओके, 1939 है। तो अभी मुझे पोटेशियम का एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 39 into 1.67 into 10⁻⁻24, तो दिस विल कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट, ग्राम, ये ग्राम में कन्वर्ट कर देगा। ओनली व्हाट इज डिफरेंट चेंजिंग हियर,
जो एलिमेंट चेंज करोगे तो उसका एटॉमिक मास भी चेंज होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा कि 10 पोटेशियम एटम्स का मास बताओ। सो आपको कुछ नहीं करना है, 10 के लिए आप क्या करोगे, 39 तो एक एटम का है और ये मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, वो कन्वर्जन फैक्टर। उसके बाद आप 10 मल्टीप्लाई करोगे, नाउ यू विल गेट द मास ऑफ 10 पोटेशियम एटम्स। सो एवरी टाइम whenever I tell you to calculate the mass of any element, remember its atomic mass. याद रखना, the question is like calculate the atomic mass in AMU, then you no need to convert that into gram. AMU में कैलकुलेट करने बोलेंगे, फॉर एग्जांपल 10 पोटेशियम एटम्स का मास बताओ, AMU में बताओ, तो आप 39 into 10 करोगे, so that becomes 390 AMU, that's it. तो उतना ही हो जाएगा। ग्राम में कन्वर्ट करने स्पेसिफिकली बोला होगा तभी जाके आप वो कन्वर्जन फैक्टर यूज करोगे। नाउ प्रॉब्लम विद दिस सिचुएशन इज, ये एटॉमिक मास से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या चल रहा है, इफ यू मल्टीप्लाई दैट, चलो अभी तो हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या फाइनल वैल्यू है वो तो नहीं देख रहे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ। 23 into 1.67 कितना होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल। बट इफ यू लुक एट दैट, ये जो 10 raised to minus 24 है, तो 10 raised to minus 24 क्या बताता है, 10 raised to minus 24 ये बताता है कि 0.0000023 के बाद कुछ ना कुछ वहां पे नंबर आ जाएगा। ओके, कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस वैल्यू, you can clearly understand this particular mass, मतलब mass of one atom cannot be calculated in normal scale. Normal scale में तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि normal scale तो हार्डली 4 डिजिट दिखाता हो, 4 डिजिट दिखाता है, तो इसलिए आप मास उसका कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। So that means one atom cannot be measured in a normal scale. ये तो हो सकता है मास स्पेक्ट्रोमीटर जैसे sophisticated instruments हो, there you can do, but finding the mass of one atom is not possible in a normal scale. Even if मैं 100 atoms भी किया होता, 100 atoms भी किया होता, 100 atoms करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, into 100 करना पड़ेगा, भी किया होता तो भी वो मेजरेबल स्केल में नहीं जाता। ओके, मेजरेबल स्केल में नहीं जाता तो मुझे एक बहुत बड़ा नंबर यूज करना पड़ेगा। 1 लाख भी लेता हो तो कम पड़ेगा, 10 लाख भी लेता हो तो कम पड़ेगा, तो बहुत बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा वैल्यू क्या है बता। So instead of going for mass of one sodium atom, if I go to calculate mass of 6 into 10 raised to 23 sodium atoms, देखो this is the huge number, मतलब 6 के आगे आपको 23 जीरो रखना पड़ेगा, 23 जीरो लिखोगे तभी जाके वो क्या हो जाएगा, उतना बड़ा नंबर, मतलब उतना सारा एटम्स का आपको मास मेजर करना होगा। सो अभी इतना सारा एटम्स का मास मेजर करने के लिए आपको अभी क्या करना पड़ेगा, सिंस इट इज सोडियम, आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट 23 into 1.67 into 10 raised to minus 24 into अभी आप क्या कर सकते हो, 6 into 10 raised to 23 आप कर सकते हो। So here the calculation will be 23 because वो सोडियम का बात चल रहा है, और कन्वर्ट करूंगा 1.67 into 10 raised to minus 24 से, तो ग्राम में कन्वर्ट हुआ। अभी मुझे इतना सारा आइटम्स के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 into 10 raised to 23 से, बिकॉज मैंने आपको बोला था 10 आइटम्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 था, 100 आइटम्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 था, बट 6 into 10 raised to 23 आइटम्स के लिए मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर होगा। नाउ इफ यू कैलकुलेट 23 1.67 into 6, अब ये 10 raised to minus 24 और 10 raised to 23, ओके, इसमें आपको पता है पावर को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा 10 raised to minus 24 plus 23, वो हो जाएगा 10 raised to minus 1। 10 raised to minus 1 को हम लोग 1/10 भी बोल सकते हैं। सो इफ आई डिवाइड दैट विद द 10, अभी क्या होगा 23, अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करने से आपको मिलेगा 1.000 समथिंग। ओके, सो इससे आप ये बोल सकते हो कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 23 into 1, ये 23 into 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली 23 हो जाएगा, 1 मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, सो 23 ग्राम हो जाएगा। नाउ व्हाई आई एम एक्सप्रेसिंग दैट इन ग्राम,
बिकॉज AMU से ग्राम कन्वर्ट कर चुके हैं. 23 was in AMU. After multiplying this, the situation became unit became gram. और उसके बाद ये तो क्या था, ये तो काउंट था, वो नंबर ऑफ एटम्स थे. नंबर ऑफ एटम्स का कोई यूनिट नहीं होता, सो वो काउंट था, काउंट नंबर ऑफ एटम्स. सो इसलिए दिस हैज कन्वर्टेड इनटू दिस वन. नाउ रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन when I say 23 AMU or when I say 23 gram for sodium. I'm saying since हम लोग सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी का भी देखेंगे. सो 23 ग्राम बोलूंगा और 23 AMU बोलूंगा, तो क्या फर्क है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस 23 ग्राम बोलने में और 23 AMU बोलने में? क्या फर्क है? एक तो यूनिट का फर्क है, वो तो ठीक है, बट क्या आपको ये वैल्यू से ये नहीं मालूम पड़ रहा है? When I say 23 AMU, even 23 ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. देखो ये ग्राम में कन्वर्ट किया वैल्यू है. When I say this one, चलो मैं ग्राम में ही कन्वर्ट करता हूँ. When I say this one and this one, what is the difference here? Can't you see the count? Count आप देख पाओगे. मतलब when I say 23 AMU, that means I am talking about something called as atomic mass. Atomic mass, nothing but mass of one atom. But when I say 23 gram, I am saying something called as gram atomic mass. Gram atomic mass क्या होगा? It is the mass of 6 into 10 raised to 23 atoms. अभी देखो, if I change the element, सोडियम से मैं पोटेशियम करूं, ऑक्सीजन करूं, कार्बन करूं, तो what is going to change? If I change the element, this particular value is going to change. Why? Because every time if I change the value or change the element, mass number is going to change. And ये तो mass number है, तो ये mass number change होगा. क्या ये conversion factor change होने वाला है? नहीं होगा. Because every time if you want to convert from AM into gram, you have to multiply that conversion factor. So every time you have to multiply this conversion factor to get value in gram. इसका मतलब आपको ये वाला वैल्यू को, मतलब ये 1.67 1.67 को आपको कुछ भी करके 1 करना है, तो ओनली वन वैल्यू पॉसिबल इज 6 into 10 raised to 23. और यही एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. तभी जाके कोई भी एलिमेंट का मास नंबर हो, वही मास नंबर आपको ग्राम में दिखेगा. यानी कि सोडियम में देखो 23 becomes 23 ग्राम, पोटेशियम का 39 AMU and 39 ग्राम. सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है, आपने 23 AMU से ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम के साथ बाद में आपने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दिया. कितने के लिए बढ़ा दिया? 6 into 10 raised to 23 के लिए बढ़ाया. तभी जाके वो सेम वैल्यू आपको फिर से मिला in terms of gram. And you can easily see 23 gram can be easily calculated. 23 ग्राम को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. सो वो जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर आपको सेम टू सेम आने के लिए आप हमेशा काउंट कितना रखोगे? हमेशा आप काउंट रखोगे 6 into 10 raised to 23 का. 6 into 10 raised to 23 का काउंट रखोगे, तभी जाके आपको वैल्यू मिलेगा सेम. नोट कर लो. Very good. Parth said the right answer. There is a very big difference. Yeah. Second step. So, see, first what I have done, I will give one more example. और एक example देता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. Okay, let me, should I rub this part? Are you done with this so that I can give you one more example? Okay. Same to same मैं करूँगा और एक example.
if I talk about carbon, 6, 12, okay, so mass of one carbon atom, mass of one carbon atom कितना होगा? जो ऊपर दिखता है वही होगा। वो किस में होता है? 12 AMU होता है, बिकॉज 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स है। तो मुझे AMU में नहीं चाहिए, मुझे ग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट मल्टीप्लाई विद द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो जो भी आता होगा। बट इसको मैं डायरेक्टली 12 ग्राम का भी बोल सकता हूँ। बताओ, 12 AMU को डायरेक्टली मैं 12 ग्राम कब बोल सकता हूँ? व्हाट शुड आई डू देयर? Yes, very good. That will become 12 ग्राम only when, देखो आप वो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से समझ सकते हो कि 12 की 12 ही रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1.67 इंटू 10⁻²4 को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो उसको 1 कर दे, मतलब इक्वल टू 1 कर दे, पर तभी जाके 12 इंटू 1 होगा। तो वो मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो वो 1 होता है। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻²4, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 इंटू 10⁻23 से। नाउ ये है क्या? ये है काउंट, मतलब नंबर ऑफ एटम्स। मतलब आपने एक एटम को, देखो ये तो एक एटम का मास है, उसको आपने 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई किया। तो 12 ग्राम क्या बना? 12 ग्राम बन गया मास ऑफ 6 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ये 6 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास। नोट कर लो जल्दी। Sir, I have a doubt. बोलो Sir, I have a doubt. बोलो बेटा बोलो। सर हम लोग 6 इंटू 10⁻23 ही क्यों लेते हैं? 10⁻23 का समझ आ गया, पर why only 6? Okay, so it was obtained when after doing mathematical manipulation. अब ये मैनिपुलेशन किसे मैं बताता हूँ। आपको लगेगा, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 1 12 एक 3 है समझ, मतलब 12 तो मुझे रखना ही, क्योंकि दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू फॉर कार्बन। मतलब कोई भी एलिमेंट का जो नंबर है वो मुझे फिक्स रखना है। अभी उसके साथ एक 3 को मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, बिकॉज ये तो कन्वर्जन फैक्टर। बट मुझे बताओ, ये 3 को मुझे 1 करवाना है, यानी कि कुछ भी करके 12 इंटू 1 करना है। तो मैथमेटिकली कितना नंबर पॉसिबल होगा? मैथमेटिकली एक ही ऐसा नंबर होगा जो इसको 1 कर देगा। तो बोल सकता हूँ 1/3। 1/3 एक अकेला है नंबर जो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 कर देता है। नाउ यहाँ का केस में प्रॉब्लम क्या? आप बोल सकते हो तो वो 6 इंटू 10⁻23 क्यों? इसका इनवर्स लेते हैं। आप बोल सकते हो इसका इनवर्स लेते हैं। बट ये नंबर, ये जो भी आप सेलेक्ट करने वाले हो, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? ये आप एक्चुअल में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? ये एक्चुअल में तो आप काउंट मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑल द टाइम इट हैज टू बी होल नंबर, वो होल नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं, मुझे ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तभी जाके वो 1 हो गया। बट यहाँ पे मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है? whatever number you keep here, जो इसको आगे कैलकुलेशन में 1 करने वाला हो, ये नंबर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। और मैथमेटिकली ये एक अकेला नंबर है जो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन से 1 मिलेगा। सो इट हैज टू बी होल नंबर, बिकॉज वो नंबर ऑफ एटम्स को डिपिक्ट करता है, वो नंबर ऑफ एटम्स कितना वो बताता है। समझ गए? बट सर 1.67 को 6 कैंसिल आउट कैसे करेगा फिर? कैंसल आउट नहीं बोल रहा हूँ, 1 बोल रहा हूँ मैं। 1 तो 1.67 इंटू 6 1। हाँ, वो कैंसल आउट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर 1 आना चाहिए। सो ये सब वैल्यूज अप्रोक्सीमेट है ना?
Which one? 6 into 10 raised to 23 you are saying? It is not approximate. आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.000 समथिंग मिलेगा आपको when you calculate. ये मैंने ऐसे ही 1 करके नहीं बोला, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो 1 हो जाता है. सर आपने सोडियम आइटम्स में वो 23 इंटू 1.67 इंटू 6/10 क्यों किया था? हाँ, आपको तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है फिर तो. ये दोनों का कैलकुलेशन देखो कैसे होगा. 1.67 into 10 raised to minus 24 into 6 into 10 raised to 23. So how to do this calculation? ये 10 raised को सेपरेट करो और बाकी नंबर को फिक्स रखो. So ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और 10 raised to minus 24 into 10 raised to 23 एक साथ रखता हूँ. So when you calculate this, 6 7 are 42, 2, 4, 6 6 36, 40, 4, 6 1 are 6, so 4, 10. Okay. अभी 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद मैं डेसिमल पुट करता हूँ तो ये कितना हुआ 10.02 हुआ. और आपके पास बचा क्या है यहाँ पे 10 raised to minus 24 और प्लस 23. आप क्या करोगे whenever you multiply 10 raised to something you have to add the power. आप पावर ऐड करोगे. So this is 10 into 10.02 into ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा. इसमें -1 बच जाएगा और आप लोगों को पता रहना चाहिए इसका मतलब 1/10 होता है. ओके. इनवर्स का मतलब क्या है 10 raised to minus 1 का मतलब 1/10. अभी 10 raised to minus 2 रहा तो आपको लिखना 1/100 like that. Otherwise आप 1/10 raised to 2 लिख सकते. So that is also fine. So इसका मतलब क्या होता है इसको मैं बोल सकता हूँ 10.02 ये क्या होगा 1/10 होगा. तो दैट इज 10 से कट हो जाएगा आपको 1 आंसर मिलेगा. सो मैथमेटिकली वो एक ही अकेला नंबर है. सर बोलो. आंसर 1.002 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट कर 1 आएगा ना? बराबर है. मैंने तो कौन सा आपको बोला कि एग्जैक्टली 1 आएगा. 1.002 आएगा तो वो इट हैज टू बी सेड एज 1 ओनली. बड़ा फर्क नहीं आएगा. ओके. नाउ राइट डाउन क्वेश्चन. बोलो. सर 6 into 10 raised power 23 की जगह हम लोग 7 into 10 raised power 23 क्यों नहीं ले सकते? आप लोगे तो आपको क्या वो एक्यूरेट 1 देगा? नहीं देगा तो क्यों लेना फिर? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि 12 AMU या कोई भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा वो वैसे के वैसे ही चाहिए हमें, बट वो ग्राम में चाहिए. देन आप जो नंबर ऑफ एटम्स ले सकते हो वो 6 into 10 raised to 23 ही होगा तभी जाके. बिकॉज सी कन्वर्जन फैक्टर जो 1.67 into 10 raised to minus 24 है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कन्वर्जन फैक्टर है. कन्वर्जन फैक्टर को आप कभी चेंज नहीं कर सकते. तो व्हाट इज इन योर हैंड फॉर एनी गिवन एलिमेंट? कोई भी एक गिवन एलिमेंट के लिए उसका एटॉमिक मास चेंज करना अपना हाथ में नहीं है. बिकॉज एटॉमिक मास वो फिक्स्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आया हुआ रहता है. ना ही अपना हाथ में उसका कन्वर्जन फैक्टर जो 1.67 into 10 raised to minus 24 है उसको भी चेंज करने का अपने पास राइट नहीं है. बिकॉज 1 AMU is equal to 1.67 into 10 raised to minus 24 ग्राम. वो भी अपन चेंज नहीं कर सकते. तो what is in our hand? Our hand only the number of atoms. आप number of atoms 10 रखो 20 रखो कुछ भी रखो. तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं एवरी टाइम AMU से ग्राम में कन्वर्ट करते वक्त आपको 1.67 into 10 raised to minus 24 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. वो कभी भी आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ये काउंट को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये बोलेंगे अभी जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे देन वी कॉल इट एज ग्राम एटॉमिक मास. एंड वी हैव टू रिमेंबर ग्राम एटॉमिक मास इंडिकेट्स दैट
that particular element contains 6 into 10 raised to 23 that atoms, उसका atoms उसमें कितना होगा 6 into 10 raised to 23 होंगे। वो कैसे आया वो मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया। चलो एक प्रॉब्लम करो, उसमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। how many calcium atoms are present? How many calcium atoms are present? How many calcium atoms are present? In 4000 AMU mass. In 4000 AMU mass. How many calcium atoms are present? In 4000 AMU mass. टोटल मास दिया हुआ है 4000 AMU और आपको बोल रहे हैं कि उसमें कितना कैल्शियम एटम्स होंगे, चेक करके बताओ। से 100। ओके सर 100। इसको आप यूनिट मेथड से करो। हमें क्या देखना है, मास वर्सेस नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, इनका कंपैरिजन करना। हमें ये पता है व्हेन आई से 1 कैल्शियम 40 AMU, ये तो पता ही है बिकॉज एटॉमिक मास हमने देखा। बट व्हाट इज गिवन टू अस, देखो दिस इज नॉट गिवन, दिस यू हैव टू नो। एक कैल्शियम एटम का मास कितना है वो तो आपको पता रहना चाहिए। Now what is given? Given is 4000 AMU and what is asked? Number of calcium atoms. So you will do this crisscross. Now 4000 into 1 upon 40. So you will get 100 calcium atoms. Next question. Express total mass of 10 helium atoms in gram. ग्राम में आपको बताना है 10 हीलियम एटम्स का मास कितना है। Okay, Vishant has answered, but beta, remember you have answered me in terms of AMU. AMU में आप आंसर किया है। आदिश्री, you also answered in terms of AMU. $40 ग्राम नहीं है, 40 ग्राम राइट आंसर नहीं है। Okay, Parth has given some value. Let us see that. देखो आप ग्राम में डायरेक्टली चले गए, 40 ग्राम का भी होगा, 40 ग्राम का उसमें 6 into 10⁻23 हीलियम एटम्स होना चाहिए। Now mass
So 6.68 into 10 raised to minus 24. ओके एक हीलियम एटम का 4 AMU मास है, ये तो हमें पता है। सो हमें अभी गिवन क्या है, गिवन 10 हीलियम एटम, 10 हीलियम एटम्स का मास कितना होगा, आप एक बार ये क्रॉस करोगे तो यू विल गेट 4 into 10 डिवाइड बाय 1, दिस यू विल गेट इन AMU। ये आपको देखो ये यूनिट क्या है, AMU है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ग्राम कैसे पुट कर दिया, ये AMU में रहा तो आप डायरेक्टली ग्राम कैसे पुट करते, वो तो नहीं कर सकते। बट अभी आप क्या कर सकते हो, 40 into 1.67 into 10 raised to minus 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो चला गया अभी ग्राम में, बिकॉज ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, पारित कितना आ रहा था, So 6.68 into 10 raised to minus 24. 68. ओके तो 6.68 into 10 raised to minus 23 ग्राम आएगा। Sir 24 ना? आपने 40 ग्राम डायरेक्टली बोल दिया, वो कैसे, यहाँ पे AMU से आप डायरेक्टली कैसे कर दिया वैसे। वन मोर क्वेश्चन, Sir 10 raised to minus 24 आएगा ना? 24। How many carbon atoms are present in 36 gram of carbon? सोचो करो। Okay, Bhumi has answered. Adishri answered. Let's see who is correct. Let us see that. Okay, Gaurang is answered. Let me do this now. Mass and number of carbon atoms. वन कार्बन एटम का मास तो 12 AMU है। ओके, अभी आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट यूज करना। व्हाट इज दैट, हमने अभी अभी देखा AMU को मैंने डायरेक्टली ग्राम में लेता हूँ, AMU को मैं डायरेक्टली ग्राम में लेता हूँ तो उसमें कितना एटम्स हो जाते हैं डायरेक्टली, 6 into 10 raised to 23 कार्बन एटम्स होंगे। यानी कि कोई भी एटॉमिक मास को मैं डायरेक्टली ग्राम में लेता हूँ तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएंगे, वो हमने कैलकुलेशन से देखा। तो इसको हम लोग अभी कंपैरिजन में लेंगे। सो 12 ग्राम कंटेन 6 into 10 raised to 23 कार्बन एटम्स, वो कैसे आया मत पूछना, अभी अभी हमने देखा। सो 36 ग्राम will contain how many, because 36 ग्राम तो पूछा गया है। तो if you do this,
36 into 6 into 10 raised to 23 divide by 12. 12 one times, 12 three times. So 3 into 6 into 10 raised to 23. So 3 into 2 क्या हो जाएगा 18 carbon atom. See, this is the easiest way to convert gram into number of atoms. देखो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे बना सकते हैं. मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा होता कि हाउ मेनी electrons are present in 36 gram of carbon. ये क्वेश्चन पूछा होता तो आपको क्या करना है, ये तो स्टेप करना ही पड़ता. आपको 36 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ढूंढना ही पड़ेगा. उसके बाद एक एडिशनल स्टेप हो जाएगा. व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने का स्टेप. कैसे? आपको नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बीच में कंपैरिजन करना पड़ता. एक कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन से देखना पड़ेगा. वी नो कार्बन भी रिप्रेजेंट लाइक दिस. नाउ ये 6 से आपको मालूम पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स है. एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमें पूछा गया 36 ग्राम में कितना है. हमने वो 36 ग्राम को कार्बन एटम्स में बदल दिया. मतलब ग्राम को हम लोग ने काउंट में बदल दिया. तो 36 ग्राम बोलना मतलब 18 into 10⁻23 कार्बन एटम्स बोलने जैसा ही है. ओके, क्योंकि 36 ग्राम को हमने कार्बन एटम में बदल दिया. ना कितना इलेक्ट्रॉन्स. So 18 into 6 into 10⁻23. So these many electrons. अब इसको फर्दर कैलकुलेट करो. 18 6 times into 10⁻23. इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स 36 ग्राम में होगा. समझ में आ रहा है? Yes, 108 into 10⁻23. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे 1 कार्बन एटम में? 1 कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? स्टार्टिंग में मैंने क्या आपको बताया? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर मैंने नहीं बताया था क्या? स्टार्टिंग में मैंने बोला एटॉमिक नंबर जो भी नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है. और एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम पड़ेगा. सो 6C12 मतलब 6 tells us number of protons as well as number of electrons present in single atom. एक एटम में कितना है वो मालूम पड़ेगा. तो 1 कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो मालूम पड़ रहा है. नाउ सो मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था. सॉरी, एक और बार रिपीट करो ना. नहीं, अभी जस्ट ये दूसरा एग्जांपल एक ले लो. नहीं, यही जो मैंने अभी डाउट पूछा था ना, मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था अभी. हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ how many neutrons are present in 180 gram of water 180 ग्राम लेता हूं तो उसमें न्यूट्रॉन्स कितना होगा. चलो चेक करके कितना बच्चों को आप आ रहा है ये. अच्छा, वाटर तो छोड़ो अभी बिकॉज वो कंपाउंड हो गया. लेट्स गो टू 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ये कर लेते हैं 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन. वाटर के बारे में बात नहीं. ट्राई टू डू दिस. सिमिलर टाइप है जैसे पहला देखा वैसे ही है. आपको पहले 71 ग्राम को नंबर ऑफ क्लोरीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एक बार नंबर ऑफ क्लोरीन में कन्वर्ट करोगे तो देयर आफ्टर 1 क्लोरीन कंटेन्स हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स. So then you can do the comparison.
कोई आंसर आ रहा है? चलो मैं करता हूँ अभी, देख देख लो तुम लोग। फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंपेयर मास एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। सो एक क्लोरीन का, ओके, एक क्लोरीन, देखो ये Cl2 है, उसको एज अ सिंगल यूनिट भी आप ले सकते हो बिकॉज Cl2 इज अ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स भी आप ले सकते हो डायरेक्ट। So you should know the difference between atom and molecule. Atom मतलब सिंगल मिलता है, सिंगल एंटिटी रहा तो उसको एटम बोलेंगे। Two or more than two atoms are connected, clubbed together, then they are called as what? Molecule. In this case, two chlorine atoms connected together, then chlorine 2 as a molecule बोलेंगे। So आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो they are connected by a bond, तो इसलिए उनको क्या करेंगे हम लोग? As a molecule बोलेंगे। ओके, सो याद रखो एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्या है? सिंगल रहता तो एटम, दो और उससे ज्यादा रहता तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। सो 1Cl2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? आपको पता है एक क्लोरीन जो है 35.5 होता है, बट दो का केस में क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा? 71। तो आप लिखोगे 71 AMU। ओके, 71 AMU। नाउ हमें पता है कि 71 को मैं डायरेक्टली ग्राम में लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻23 Cl2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, क्योंकि AMU से ग्राम में कन्वर्ट करते वक्त आपको ये वाला नंबर उधर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो आई विल यूज सर दिस। मुझे AMU में 12 × 10⁻23 आया। क्या? मुझे AMU में 12 × 10⁻23 आया। ओके, सो 71 ग्राम में कितना है? 6 × 10⁻23 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। अभी देखो गिवन डेटा भी 71 ग्राम ही है, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली मिल गया वो 6 × 10⁻23 Cl2 मॉलिक्यूल करके आपको मिल गया। तो अभी आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू कंपेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स with number of neutrons. Okay, now one Cl2 molecule में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? आप क्लोरीन को देखो, क्लोरीन को आप ऐसा लिखोगे, चलो क्लोरीन 35 लेता हूं, क्लोरीन 35 लेता हूं। सो याद रखो क्वेश्चन में मैं बोलूंगा क्लोरीन 35 वाला एलिमेंट हमने लिया। सो आपको पता है न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे? 35 - 17 करोगे, दिस इज कम आउट टू बी 18। सो वन क्लोरीन, देखो ये तो एक क्लोरीन में है, बट क्लोरीन मॉलिक्यूल बोलूंगा तो 18 × 2 हो जाएगा, यानी कि 36 न्यूट्रॉन्स है। ओके, वन Cl2 मॉलिक्यूल में 36 न्यूट्रॉन्स है, बिकॉज एक क्लोरीन में 18 है तो ये Cl2 बन के रहता है तो 36 हो जाएगा। बट वी गॉट हाउ मच क्लोरीन मॉलिक्यूल्स? We got 6 × 10⁻23 Cl2 molecules, because 71 ग्राम के लिए बोला था और 71 ग्राम तो उतना बन जाएगा। So when I multiply these two, this will get multiplied there. 6 × 36 × 10⁻23 neutrons. Write it down. Okay,
If you are done, say okay. I will give you one more problem. Write down. सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने आपको चैट में मैसेज दिया है। मैंने चैट देखा नहीं बेटा। क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? मैं शुरू से सर शुरू से नहीं आ रहा है मेरे में, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ बेटा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ अभी इसके लिए? अब इसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा, ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा, तो वो देख लो। सर अगर उसमें भी समझ में नहीं आया तो आप बात करेंगे आप लोग। मैं जूम लेक्चर आपके साथ लाइव लेक्चर लगता हूँ, लाइव डाउट सेशन भी रखेंगे ना। तो मतलब अभी तो फिर से रिपीट मैं कहाँ से करूँ? तो आगे ही नहीं जा पाऊंगा, फिर तो लेक्चर ही नहीं हो पाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम तो कोई ना कोई बच्चे का होता ही रहेगा, तो मैं तो हर बार रिपीट करते रहूंगा, तो वो तो फिर आगे ही नहीं चलेगा ना। किसी एक का बच्चे का प्रॉब्लम है तो उसको मैं अलग से बैठ के बता सकता हूँ। How many atoms of sodium are present in 92 grams of sodium? How many atoms of sodium are present in 92 gram? 92 ग्राम में कितना सोडियम प्रेजेंट है? जो भी बच्चों का नेटवर्क का इश्यू हो रहा है बेटा, तुम लोग को फिर से इसका रिकॉर्डिंग जहां पे आपका छूट गया है वो वाला देखना पड़ेगा। बट हर बार बच्चे का नेटवर्क इश्यू होता है तो मैं उधर से फिर से रिपीट करूंगा, तो बाकी बच्चों का टाइम पास हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ऐसा करेंगे तो अपन लेक्चर में आगे नहीं जा पाएंगे। तो एक एक बच्चे का, जैसे अभी ये बच्चा बोला उसके वजह से कोई इश्यू है, आई कैन टेल यू सेपरेटली, मैं आपको सेपरेटली बता सकता हूँ। सर आप कैसे बताओगे सेपरेटली? सेपरेटली जूम लेक्चर में कर सकते हैं ना, डाउट सेशंस लगेंगे। अब ये टॉपिक का मंडे को या ट्यूसडे को डाउट्स लगेंगे, तो उसमें आप आ जाना, उसमें आपको बता देता हूँ। नहीं तो व्हाट्सएप में पूछो जो भी बीच में नहीं समझ में आया। अब ये रिकॉर्डिंग आपको फिर से देखना है, आपका जहाँ पे मिस आउट हो गया वो वाला पार्ट आपको फिर से देखो। मैं अभी शाम को इसको शेयर करूंगा। सर अपने क्लोरीन वाले क्वेश्चन में मास आपने 35 लिया ना, तो फिर आपने 35.5 इंटू 2 क्यों किया फिर पहले? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है Cl2। लेकिन 35 होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, आप बराबर बोल रहे हो। यू कैन टेक, बराबर बोल रहे हो, 35 इंटू 2 लेना चाहिए, दैट इज करेक्ट। वो तो मैंने, क्योंकि वो आइसोटोप की वजह से 35.5 हो जाता है ना। सो वेरी ट्रू, आप उसको 35 ले लो। बट अभी वो करने जाएंगे ना, सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट 71 ग्राम एंड वील गेट 35 इंटू 2 एज 70। सो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। सो वो 35 इंटू 2 ही होना चाहिए। ओके सर। सर क्या मतलब? So what she was saying that मैं मास लेते वक्त क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 71 लिया था। बट जब मैंने न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा था तभी मैंने 35 लिया, बिकॉज 35.5 लूंगा तो वो नहीं आ पाएगा। और 35.5 एक्चुअली एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास। तो मैंने आपको क्वेश्चन में चेंजेस करवाया, 35.5 मत लो, डायरेक्टली 35 लो। बट मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किया उसको। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 35 इंटू 2 करके
आपको इसको भी 70 करना पड़ेगा। देन वो 70 करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, बिकॉज गिवन डेटा वाज 71। तो वो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बस हो गया, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। Now let us go to how many atoms of sodium are present in 92 gram of sodium. So number of atoms and mass, इनका आपको रिलेशन देखना है। नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो कितना होगा, 23 AMU होगा। 1 सोडियम एटम का 23 AMU मास होगा। नाउ मैं डायरेक्टली इसको 23 ग्राम लेता हूँ तो मुझे पता है दिस विल बिकम 6 into 10⁻23 सोडियम एटम, because we have seen that. Now 6 into 10⁻23 sodium atoms equal to 23 gram. We are asked to calculate at 92 gram. 92 gram में कितना है? So 92 gram is equal to question mark. So ये दोनों आप multiply करोगे, so you will get 92 into 6 into 10⁻23 divided by 23. Okay. Now 23 4 times 92. So that means this is 1 time and this is 4 times. So remaining is 4 into 6 into 10⁻23 sodium atoms. अब उसको further class calculate करोगे, this will become 24 into 10⁻23 sodium atoms. Copy that. ओके अभी नया नहीं पढ़ाऊंगा, अभी जो भी डाउट है, जो बच्चा बोल रहा था, बताओ बेटा आपका कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था, बताओ। नया टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को समझ में आ गया, दे कैन लीव द लेक्चर नाउ, दे कैन टेक अ ब्रेक एंड दे कैन ज्वाइन फॉर अदर लेक्चर लेटर। जो बच्चा मुझे अभी बोल रहा था प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, वो कहाँ से बताओ बेटा, मैं वो वाला आपको बता दूंगा। वो स्टार्टिंग में ही था, वो जो आपने क्या बोल रहे हो बेटा, फिर तो आपको नहीं समझेगा कुछ भी। अभी तो मैं 10 मिनट में वो स्टार्टिंग से नहीं बता पाऊंगा, तो बेटर आप ये रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं समझा तो मुझे फोन करो। सर नंबर, हाँ मैं अभी ग्रुप में इसमें डालता हूँ। सर डाउट था। बोलो बोलो बेटा। सर वो जो आपने बोला था हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स वाला आपने एक चेंज करके दिया था, वो फिर से करके दिखाओ ना। ओके सर एटॉमिक मास बाय हार्ट करना पड़ेगा सबका। पहला 20 का बाहर करना ही पड़ेगा, वरना अपना कुछ काम नहीं हो पाएगा। ओके पहला 20 का बाहर करना। तो फर्स्ट मैंने बोला था हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन, वो कितना नंबर था, 36 ग्राम्स। 36 ग्राम। तो आप क्या करोगे, आप मास और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का कंपैरिजन करोगे। एक कार्बन आइटम के लिए मास कितना होगा, 12 AMU होगा। हाँ। और आपको मैंने बताया था 12 AMU को डायरेक्टली मैं 12 ग्राम लेता हूँ, हाँ। तो वो बन जाता है 6 into 23 कार्बन आइटम, तभी जाके वो AMU से ग्राम में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस वी गॉट नाउ, तो यहाँ से हम लोग अभी कंपैरिजन करेंगे 36 ग्राम में कितना कार्बन आइटम्स है। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई 36 into 6 into 10⁻23 divided by 12,
और 12 1 times, 12 3 times. So 3 into 6 into 10 raised to 23. This is 18 into 10 raised to 23 कार्बन एटम्स. देखो ये क्वेश्चन होता तो आपका बात यहाँ पे खत्म, मतलब कार्बन एटम्स कितना है वो पूछा होता तो इधर आपका बात खत्म हो गया, सॉल्व हो गया, ये लास्ट आंसर. बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are present in 36 कार्बन? ओके, 36 ग्राम कार्बन. अभी तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये तो पता है कि एक कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा ये तो बताया रहता है कि वी राइट लाइक दिस. तो ये 6 जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है. सो 1 कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पता है. बट हमें क्या पूछा है, वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम. 36 ग्राम में कितना, तो अभी ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे 36 ग्राम नहीं लिख सकता. वाई? क्योंकि ये 1 कार्बन ये क्या है, वो एक काउंट है, मतलब नंबर है वो. 36 ग्राम एक मास है. तो आप ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कभी मत करना, देयर इज नो मीनिंग एट ऑल. ये 36 ग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमने पहला क्वेश्चन के लिए किया था. पहला क्वेश्चन के लिए 36 ग्राम को हमने कार्बन एटम्स में कन्वर्ट किए थे. तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये वाला कंटेंट यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया और 36 ग्राम जो भी था उसको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कन्वर्ट करके ले लिया था पहले क्वेश्चन में. तो उसको हम लोग मैंने क्या किया, अभी अदर डायरेक्टली लिया. देखो ये चलेगा 1 कार्बन एंड 18 into 10 raised to 23 कार्बन एटम, ये तो सेम यूनिट में है, दोनों काउंट बताता है. बट एक काउंट 1 ग्राम नहीं चलेगा. तो अभी क्या होगा, दिस यू आर मल्टीप्लाइंग 18 into 6 into 10 raised to 23. अभी एक क्वेश्चन मार्क के नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. तो this many electrons will come. So 36 ग्राम को मैंने पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कन्वर्ट कर दिया and thereafter I converted that to number of electrons. So कभी भी याद रखो, एटम्स के अंदर के चीजें पूछते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तभी जाके आपको ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा. वो क्या है, ग्राम को आपको एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एटम्स को बाद में इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा रहा है. प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोटॉन्स पूछा तो. इट इज लाइक दैट. ओके सर. सर क्लोरीन का 35.5 क्यों है मास? Because we are going to study in the next lecture that there are 2 isotopes of chlorine. They are present in large abundance. Large abundance मतलब जब भी एक ही एलिमेंट का 2 सिचुएशंस हो, 2 आइसोटोप्स हो. सर आइसोटोप्स क्या होता है? हाँ देखो, इसलिए अभी मैं बोलने नहीं जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइसोटोप क्या होते हैं, देखेंगे तभी जाके हम लोग वो एवरेज एटॉमिक मास देख सकते हैं. सो अभी शॉर्टली मैं बता सकता हूँ, क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है, तो उनको आइसोटोप बोलेंगे. मैं नेक्स्ट लेक्चर बोलूंगा कि कुछ बच्चे अभी निकल गए हैं. सो आइसोटोप मतलब सेम, Z सेम है बट डिफरेंट A. मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है. ये ऐसा क्यों होता है, ये तब होगा जब प्रोटॉन्स सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. डिफरेंट न्यूट्रॉन्स के नंबर होगा. अब यहाँ पे देखोगे तो प्रोटॉन 17 है, यहाँ पे भी प्रोटॉन 17, बट न्यूट्रॉन के लिए आप क्या करोगे, 35 माइनस 17 करोगे तो दिस बिकम्स 18. और इधर न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करोगे, 30 माइनस 17 दैट इज 20. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, तभी जाके उनका मास नंबर में फर्क आता है. सो दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप. नाउ आइसोटोप सिर्फ क्लोरीन का ही नहीं है, बाकी एलिमेंट्स का भी होता है, बट क्लोरीन का स्पेशल इसलिए
कि जब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ढूंढने जाते हैं तभी जाके ये नेचर में कितना प्रेजेंट है वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का केस में भी हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होते हैं, दे आर लाइक दिस, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम करके, बट उनका नेचर में प्रेजेंस ये 99% यही है और इनका प्रेजेंट लेस देन 1% मिला के, तब जाके आप इनका मास जो है एटॉमिक मास आप डायरेक्टली 1 ले सकते हो, बिकॉज इनका मास को आप कंप्लीटली इग्नोर करोगे बिकॉज नेचर में उनका एक्सिस्टेंस बहुत ही कम है। बट इनका केस में आप नहीं कर सकते बिकॉज नेचर में इनका जो ऑकरेंस है ये 75% प्रेजेंट है और ये 25% प्रेजेंट है। तो कोई भी आप रैंडमली क्लोरीन उठा लोगे, कोई भी सब इसे डब्बे से जहाँ पे क्लोरीन है, तो आपको 75% ये वाला क्लोरीन उसमें दिखेगा, 35% सॉरी 25% 37 वाला दिखेगा। तो तभी जाके अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उनका एवरेज लेना पड़ता है, इनका एवरेज लेना पड़ता है, वो वाला ये 35.5 आता है और वो फॉर्मूला के साथ आपको समझना है, दैट फॉर्मूला आई टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So not in all the cases you will get atomic masses as a ratio या average. Wherever उसका आइसोटोप बहुत ज्यादा होता है तभी जाके दोनों का एवरेज लेना पड़ता है। जहां जहां आइसोटोप का अबंडेंस कम होता है, परसेंटेज कम होता है नेचर में, उसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो व्हेन यू मेजरिंग एटॉमिक मास। ओके सर। सर आप हमें म्यूट करके बार बार मत रखिए सर, क्योंकि फिर जो डाउट्स होता है वो चैट बॉक्स में टाइप करके नहीं लिख पाते हैं। तो मैंने तो अनम्यूट ही रखा हुआ है ना सर वो स्टार्टिंग में आपने जो म्यूट रखा था। हाँ हाँ, मैं अनम्यूट करने जैसा रखूंगा। ओके सर। ओके ठीक है, अभी ब्रेक ले लो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ।